વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8નો બીજો પાઠ જોવાનો છે અને એ બીજા પાઠનું નામ છે ઈદગાહ. એ ઈદગાહના લેખક છે પ્રેમચંદ. ઈદગાહ એટલે શું? તો કે ઈદને દિવસે જે જગ્યાએ નમાઝ પઢવામાં આવતી હોય, બધા મુસલમાન છે, મુસ્લિમ લોકો બધા ભેગા થઈ અને એક જગ્યાએ જ્યાં એની મસ્જિદ હોય ત્યાં એ લોકો નમાઝ પઢે, એ જગ્યાને ઈદગાહ કહેવાય. અને આમાં સરસ મજાની વાત કરવામાં આવી છે. એક નાનો એવો બાળક છે, એ બાળકની આખી કહાની આમાં ગૂંથી લેવામાં આવી છે. એ બાળકનું નામ છે હામિદ. હામિદ છે, એના માતા પિતા મૃત્યુ પામ્યા છે અને તે પોતાની દાદીમા સાથે રહે છે. ગામમાંથી બધા એમ કે આજે ઈદગાહ જવા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને હામિદને પણ બધાની સાથે જવું છે, પણ દાદીમાને બીક લાગે છે કે નાનો એવો છે અને પગમાં પહેરવા માટે ચપ્પલ પણ નથી. તો એ કેવી રીતે એમ કે ઈદગાહ જશે, ભૂખ્યો તરસ્યો રહેશે. એટલે દાદીમા છે એની પાસે જે કાંઈ થોડા ઘણા પૈસા હતા એ એને આપે છે અને બધા કે ખૂબ સરસ રીતે તૈયારી કરી અને ઈદગાહ જવા માટે ઉપડે છે ગામના લોકો. હવે બને છે એવું કે છોકરા માટે તો ઈદ છે એક મેળા જેવો જ તહેવાર હતો. એના માટે તો એને રોજા રાખવા કે ભૂખ્યા રહેવું, તો એવું તો એના માટે કોઈ મહત્ત્વનું હતું નહીં. એના માટે મહત્ત્વ શેનું હતું? તો કે એના માટે તો ત્યાં જાય અને સરસ મજાની એમ કે દુકાનોમાં એમ કે રમકડા હોય, આ ઉપરાંત મેળા જેવું વાતાવરણ હોય, ચકડોળમાં બેસવાની મજા આવે, મીઠાઈ ખાવાની મજા આવે. તો એના માટે તો આ જ એના ઉત્સાહનો તહેવાર હતો. એમ કે ખૂબ આનંદ કરશું એટલા માટે બાળકો એમ કે જવા માટે તૈયાર થાય છે. હવે બાળકો જાય છે તો એની સાથે હામિદ પણ જાય છે અને બાળકો છે એ અલગ અલગ વસ્તુઓ રમકડા ખરીદે છે. આ ઉપરાંત કોઈ ચકડોળમાં બેસે છે, આ ઉપરાંત કોઈ મીઠાઈ લે છે. પણ હામિદ છે એની પાસે તો માત્ર 3 પૈસા હતા. એમાંથી એ કાંઈ વસ્તુ લઈને ખાઈ શકત, પણ એ જોવે છે કે એક લોખંડની દુકાન આવે છે અને એમાં સરસ મજાનો એક ચીપિયો છે એ ટીંગાતો હતો. એટલે હામિદને ઈચ્છા થાય છે કે હું આ ચીપિયો લઈ લઉં. શા માટે? તો કે હું આ ચીપિયો મારી દાદીમા અમીના છે એને હું આપીશ, જેથી કરીને દરરોજ એમ કે એ જ્યારે ચૂલા ઉપરથી રોટી ઉતારે છે ત્યારે એનો હાથ દાઝી જાય છે, એટલે દાઝે નહીં એટલા માટે એ પોતાના માટે નથી વિચાર કરતો, પોતાના માટે ખાવાનું પણ કાંઈ લેતો નથી, રમકડા પણ લેતો નથી, પણ એ દાદીમાનો વિચાર કરે છે અને ચીપિયો લે છે. એટલે એના મિત્રો છે એને ચીડવે છે કે તે કાંઈ રમકડાનો લીધા, કાંઈ ખાધું પીધું નહીં અને આ ચીપિયો શા માટે લીધો એમ. એટલે એ કહે છે કે આ ચીપિયો છે એ તો એમ કે ખૂબ સારો છે અને તમારા બધાના રમકડા તો તૂટી ફૂટી જાય, પણ મારો ચીપિયો છે એને જો રમકડું બનાવવું હોય તો રમકડું પણ બની જાય. અને એ રીતે એ એની કમાલ બતાવે છે ચીપિયાની. એટલે બીજા મિત્રોને પણ એમ થાય છે કે આપણે પણ એમ કે ચીપિયો લીધો હોત તો સારું હતું. હવે જ્યારે એ ઘરે પહોંચે છે ત્યારે દાદીમા જોવે છે કે કાંઈ નહીં ને ચીપિયો કેમ લઈને આવ્યો એમ. આખો દિવસ ભૂખ્યો તરસ્યો રહ્યો, કાંઈ ખાધું પીધું નહીં, કાંઈ રમકડા ન લીધા. એટલે દાદીમા છે એને ગુસ્સો આવે છે કે આ ચીપિયો શા માટે લઈને આવ્યો એમ. એટલે દાદીમા એને ખીજાય છે ત્યારે એ પ્રેમથી કહે છે કે તમારા હાથ એમ કે કાયમ દાઝી જાય છે એટલા માટે હું તમારા માટે ચીપિયો લાવ્યો છું એમ. અને એ સાંભળી અને દાદીમા છે એનો ક્રોધ છે એ સ્નેહમાં બદલાઈ જાય છે, એનું હૃદય ભરાઈ આવે છે અને એને એમ થાય છે કે આ મારો બાળક છે એનો વિચાર ન કર્યો અને મારો વિચાર કરી અને આ ચીપિયો મારા માટે લાવ્યો. એટલે એ દાદીમાના મોઢામાંથી હામિદ માટે ઘણી બધી દુઆઓ નીકળે છે અને કરુણાના આંસુ પણ એની આંખમાંથી વહે છે. ત્યાં આપણે આ કહાની છે એ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે પ્રેમચંદ વિશે વાત કરીએ. ખૂબ જ જાણીતા એવા હિન્દીના એ લેખક છે પ્રેમચંદ.
तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था, निधन सन 1936 में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी એટલે કે उत्तर प्रदेश में आवेलू के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है, यानी कि यह कहानी है वह बहुत प्रसिद्ध हुई थी। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, तब हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी माँ अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम विस्तार से कहानी देखें तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, यानी कि आज घણા બધા દિવસો પછી એટલે કે 30 રોજાના દિવસો પૂર્ણ થાય પછી ઈદ આવે, રમજાન ઈદ આપણે જાણીએ છીએ કે હમણાં જ રમજાન મહિનો ગયો અને ઈદ ગઈ, એ આજ રમજાન ઈદ જ ગણાય છે। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी कि सब गांव वाले हैं वह अपना काम निपटा लेते हैं कि वो दोपहर आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। એટલે કે આ બધા નાના બાળકો છે એ બધા આજે ખૂબ ખુશ છે। કોઈએ 1 રોજો રાખ્યો છે, કોઈએ માત્ર બપોર સુધી જ રોજો રાખ્યો છે, પણ એના માટે તો આ એક મેળાનું વાતાવરણ હતું, એટલે એ બધા ખૂબ આનંદિત હતા। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर है वह धन का देवता है, उसके पास जितना धन है और किसी के पास इतना नहीं है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। ये जो महमूद है, मोहसिन है, ये सब हामिद के मित्र है, उसके पास पैसे है तो वह गिनते रहते हैं। उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। गरीब सूरत उसका चेहरा है, वह गरीब है, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। हेजा यानी कि गुजराती में झाड़ा उल्टी, એટલે કે એને ઝાડા ઉલટી થઈ જાય છે અને એના પિતા મૃત્યુ પામે છે। फिर एक दिन माँ भी मर गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब सब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है, यानी कि उसकी दादी माँ है वह बहुत चिंतित है कि आज ईद है लेकिन उसके घर में दाना नहीं है, वह क्या पकाएगी और क्या खाएगी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, यानी कि उसके जीवन में अब कोई उजाला नहीं है, निराशा ही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी कि दुष्ट। यह जो दुष्ट ईद है वह आज आई है, न आई हो तो अच्छा था, ऐसा वह कह रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी कि वह दुख व्यक्त कर रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे अकेले कैसे जाने दे, यानी कि उसकी दादी माँ है, उसे चिंता हो रही है कि गांव के लोग हैं, वह गांव के बच्चे हैं, वह अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरा हामिद तो अकेला है, उसके माता पिता तो नहीं है, उसके माता पिता ही अब अमीना है, तो वह उसे कैसे जाने दे। और वह बहुत छोटा भी है और उसके पैर में जूते भी नहीं है, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास पैसे भी नहीं है कि वह हामिद को पैसे दे। हामिद के पास 3 पैसे ही बचे हुए थे। यही उसकी बिसात और ईद का त्यौहार था। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, ऐसा दादी है वह कहती है कि अल्लाह ही सब काम कर देंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, वह कहता है कि दादी माँ आप चिंता मत करो, मैं सबसे पहले घर पहुँच जाऊँगा। अब गांव से मेला चलता है, सभी बच्चे हैं वह जा रहे हैं, हामिद भी उसके साथ जा रहा है। सब दौड़कर आगे हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो कि उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो तो उड़ने लगते हैं। उसको तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है आज। अब शहर आने लगता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, अदालत, कॉलेज, कलाघर, और अब शुरू होती है हलवाइयों की दुकानें। आज बहुत सजी हुई है। हम जानते हैं कि कोई भी त्यौहार आता है तो ये जो दुकानदार है, मिठाई वाले हैं, वह बहुत मिठाई बनाकर रख देते हैं, क्योंकि लोग खरीदने आते हैं और उसकी मिठाइयाँ है वह बिक जाएगी, इसलिए वह भी आज बहुत सजा धजा कर उसे रखते हैं। अब रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोज़ा पढ़ने के लिए वह लोग क्या करते हैं तो पंक्ति में यानी कि एक हरोड़ में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, એટલે કે અહીંયા કોઈ ધન પદનું મહત્વ નથી, અહીંયા તો બધા સમાન છે। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू का अर्थ है कि वह जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तब पहले वह अपना हाथ, पैर, मुंह धो लेते हैं, तो उसे वजू कहते हैं, और सब खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, ना कोई कहता है, फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सब वहाँ पर अच्छी तरह से शिस्त में खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो जाती है, अब लोग आपस में गले मिलते हैं। हम जानते हैं कि मुस्लिम लोग हैं वह ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं और बाद में एक दूसरे को वह ईद की बधाई देते हैं। अब मिठाई और खिलौना की दुकानें आने लगती है। सब ग्रामीण जो बालकों थे तो वह सभी वहाँ देखने के लिए जाते हैं। कोई हिंडोला पर चढ़ता है और कोई
आगे जाता है और कोई हाथी घोड़े और ऊंट जो वहाँ पर छड़ों से लटके हुए हैं उस पर बैठकर वह 25 चक्कर का मज़ा लेते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और अमीन सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद है वह इन घोड़ों पर नहीं बैठता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। वह इतना विचारता है कि यदि वह एक चक्कर लगाने में अपना जो कोष है उसका 1/3 नहीं दे सकता, इसीलिए वह नहीं जाता वहाँ पर। अब सब लोग खिलौने लेते हैं। खिलौने में क्या लेते हैं? कोई सिपाही लेता है, कोई गुजरिया लेता है, कोई राजा, कोई वकील, कोई भिश्ती, कोई धोबीन। यानी कि भिश्ती जो पानी भरने जाता है उसे भिश्ती कहते हैं, पानी भरकर लाता है उसे भिश्ती कहते हैं। तो ऐसे मिट्टी के खिलौने वहाँ पर रखे हुए थे। तो ये जो हामिद के मित्र है वह खरीदते हैं। नूरे को वकील से बहुत प्रेम था, लगाव था, इसीलिए वह वकील खरीदता है। और वकील है वह कैसा है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ वह वकील खड़ा हुआ है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से वह कोई केस लड़कर आया है, बहस करके आया है, तो वह ऐसा खिलौना लेता है। खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ आती है। कोई रेवड़िया लेता है, कोई गुलाब जामुन लेता है, किसी ने सोन हलवा लिया है, लेकिन हामिद ये खिलौने नहीं ले सकता है। उसी तरह वह मिठाइयाँ भी नहीं लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मिठाइयाँ खाने से थोड़ी देर अच्छा लगेगा, लेकिन फिर तो वैसा ही हो जाएगा। अब शुरू होती है लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। मिठाइयों के बाद वो शुरू हो जाता है। अब जो बच्चे हैं उसको तो उसमें कोई रस रुचि नहीं है, लेकिन हामिद है वह एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है और उसे ख्याल आता है कि अपनी दादी माँ जो अमीना है उसके पास चिमटा नहीं है, और दररोज़ वह जब रोटी सेकती है तो उसकी उंगलियां है वह जल जाती है। इसलिए वह ऐसा विचार उसके मन में आता है कि खिलौना से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर के लिए ही खुशी होती है, बाद में तो सब चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए वह एक चिमटा ले ले क्या, क्योंकि दादी माँ को वह बहुत उपयोगी होगा। और वह आगे बढ़ता है और पूछता है, ये जो दुकानदार है उसे कहता है कि मुझे चिमटा खरीदना है। तो दुकानदार कहता है कि यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार कहता है कि यह चिमटा 6 पैसे का है। लेकिन हामिद तो बोलता है मन में ही कि यह इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे है। फिर भी हामिद हिम्मत करके उसे कहता है कि यदि मुझे 3 पैसों में देना है तो मैं ले लूँ, और वह ले लेता है। 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बढ़ाई कीमत कि सब दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे। चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना भिश्ती देने को तैयार हो गया। यानी कि वह उसका गुणगान गाता है तो सभी ऐसा सोचने लगते हैं कि हम भी चिमटे
ले लेते तो अच्छा था। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया। अब आगे कहानी देखें। हामिद सबके साथ घर लौट आता है। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह उसकी दादी माँ है वह चौंक जाती है कि यह क्या लाया। कुछ नहीं खाया उसने, कुछ नहीं पिया, यानी कि उसने खिलौना भी नहीं लिया, और यह क्या लेकर आया। उसने सोचा कि हामिद के पास 3 पैसे तो थे ही, तो उसने कुछ क्यों नहीं लिया। और वह हामिद को पूछती है कि तू दिन भर भूखा प्यासा रहा, लेकिन तूने कुछ खाया पिया क्यों नहीं, और ये चिमटा क्यों लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा ले आया। लेकिन हामिद है वह उसे जवाब देता है कि तुम्हारी उंगलियां हैं वह तवे से जब तुम रोटी उतारती हो तो जल जाती है, इसीलिए मैंने यह चिमटा खरीदा है। तब अमीना का क्रोध है वह स्नेह में बदल जाता है। उसे हामिद के ऊपर बहुत प्रेम आता है और वह गदगद हो जाती है। उसमें बहुत दया आ जाती है हामिद के प्रति, और वह सोचने लगती है कि यह जो मेरा नन्हा सा बच्चा है वह कितना समझदार है कि न उसने कुछ खाया न पिया, मेरा उसने सोचा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिया। और वह हामिद को अपने गले से लगा लेती है और दुआएं देने लगती है, और उसकी आँखों में से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। तो यह है हामिद की कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। विद्यार्थी मित्रों, હું તમને આમાંથી 5 ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછું છું અને 5 હું તમને ખાલી જગ્યા પૂછું છું। એમાં पहला प्रश्न है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, हामिद किसके साथ रहता था। तीसरा प्रश्न, महमूद और मोहसिन ने कौन सा खिलौने खरीदे। चौथा प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, अमीना को क्रोध क्यों आया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प में से योग्य जो विकल्प है वह चुनकर आपको देने हैं। पहला प्रश्न, उसमें रमजान के पूरे 30 रिक्त स्थान के बाद ईद आती है, उसमें ए विधानों, बी दानों, सी फेरों और डी रोजो। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान अमीना का पोता था, ए मोहसिन, बी महमूद, सी हामिद और डी नूरा। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अमीना अपने को क्या समझती है। ए भाग्यवान, बी भाग्यहीन, सी मूर्ख और डी लापरवाह। चौथा प्रश्न, खिलौने देखकर कोई रिक्त स्थान नहीं देगा। ए शाबाशी, बी पैसे, सी दुआएं और डी बधाई।